Hey, hi everyone. I am Vinita, your mentor and guide in this journey of maths optional preparation. Today we are going to discuss what are the parameters based on which you can decide whether maths is the right optional for you or not. Whether you should proceed with this optional or not, what are the things that you need to know. क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं स्पेशली फ्रॉम दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो वो सब हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे. सो प्रोसीडिंग टू द लेक्चर, लेट मी टेल यू देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स हु कंसिडर ऑप्टिंग मैथ्स एज एन ऑप्शनल. जिसमें से जो सबसे पहला टाइप है दैट इज दोज कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग ए बीटेक डिग्री और दोज हु हैव ऑलरेडी पास्ड दिस डिग्री. Now the second type of candidates are those who are doing bachelor's with honors in mathematics or masters in mathematics, or the people who are studying maths as one of their subjects during graduation. जो maths उनका एक subject है, major subject नहीं है, बट वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स है. बट जो बैचलर्स विद ऑनर्स करते हैं या फिर मास्टर्स करते हैं उनके लिए वो मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हायर मैथमेटिक्स को. सो सी द डिफरेंस ना. सो बैचलर्स विद ऑनर्स इन मैथमेटिक्स और मास्टर्स इन मैथमेटिक्स वो मैं सेकेंड कैटेगरी में डाल रही हूँ, सेकेंड टाइप ऑफ कैंडिडेट्स. नाउ कम्स द थर्ड टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स आर दोज पीपल हु आर ग्रेजुएटेड विद arts as their some humanity wala subject as their major subject, who are basically graduated in some art subject. They did not study mathematics at all during their graduation. इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th क्लास तक ही मैथ्स पढ़ा था. इसी कैटेगरी में मैं उन कैंडिडेट्स को डालना चाहती हूँ, द पीपल हु हैव डन बैचलर्स इन आर्ट्स but maths was one of their subjects, or people who have done simple BSc with maths as one of their subjects. So these are the 3 types of candidates जिनको मैं यहाँ पर एड्रेस करूँगी. Well, I'm addressing those candidates who have done their BTech or who are pursuing this degree basically. So these are the positives with which you can proceed with this optional. See, you will find 50 to 70% or 30 to 50% syllabus similar to your graduation, because irrespective of what branch you studied, I think higher mathematics is taught in BTech in every branch, so you will be familiar with lots of syllabus. I guess पूरा जो पेपर 1 है ना हमारा, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ आवर 11th एंड 12th का सिलेबस. सो पेपर 1 सभी को फेमिलियर लगेगा क्योंकि 11th और 12th में तो सभी ने मैथ्स पढ़ा होगा, है ना. तो ग्रेजुएशन में आप जो बीटेक डिग्री वाले होते हैं उनका बहुत सारा सिलेबस मैच करता है जो हायर मैथमेटिक्स का उनको पढ़ाया जाता है, जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, OD, PD, complex analysis, numerical analysis. So they can no doubt go with this optional considering वो सारे constraints जो कि कोई भी एक general candidate face करता है. Those constraints will be dealing in pros and cons वाला section in this video itself. इसी lecture में end में I'll be telling you the general problems that each type of candidates face, है ना. तो उसके basis पर you can decide कि whether this is the right optional for you or not. But considering the syllabus, considering the whole जो educational part है जो हमें learn करना पड़ेगा मैथ्स में, उसके basis पर I can say that you will be familiar with most of the syllabus and your basics I think are strong even if you have not studied during your graduation very well. But you can work upon prerequisites, you can revise them well, you can make them strong, you can make the foundation strong. 11th और 12th क्लास का मैथ्स आप पढ़ सकते हो, बिकॉज सी बीटेक में यू विल बी डीलिंग विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ओनली. दिस इज़ नॉट थेरेटिकल. कुछ भी आप आई थिंक मेमोराइज तो कुछ नहीं करते होगे, रोट लर्निंग उतनी नहीं होती होगी जितनी ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स में होती है. सो आई थिंक इन योर एंटायर ग्रेजुएशन यू विल बी डूइंग थिंग्स, यू विल बी सॉल्विंग थिंग्स, you will be solving problems. So you have that capacity, you have that aptitude, you have that logic that will take you forward with this optional, है ना. जो जिससे आपको इस ऑप्शनल में इंटरेस्ट आएगा और आप इसको अच्छे से कर सकते हो बेसिकली. सो फॉर द बीटेक ग्रेजुएट्स आई वुड से दैट विदाउट एनी डाउट you can go with this optional positively, and considering the constraints that I'll be discussing in cons वाला part, अगर वो आपके लिए manageable है then you can go with this optional.
The only negative point for you people is that few subjects will be new to you. Few subjects, for instance modern algebra, that is pure mathematics, so वो थोड़ा सा conceptual है, थोड़ा theoretical है, so there will be theorems in that, and I think you people, in fact all of you, are not very good at doing theorems, because theorem is something जो कि हमें kind of memorize करनी पड़ती है. There is a certain procedure, certain way to do theorems. So उसमें आपको ऐसा लगेगा कि this is not numericals, this is not mathematics. So that will be new to you. Apart from that, everything is manageable for you. Now I'm addressing those students who have done bachelor's with honors in mathematics, or who have done masters in mathematics, who have studied mathematics during their graduation, है ना, apart from the BTech degree holders. See, if you have studied maths to such an extent, इतना in depth आपने पढ़ा है उसको, that you are graduated in maths, I don't think there is any reason to leave this optional, मतलब to opt some other optional, क्योंकि बाकी optionals में ना आपको you will have to put that effort to understand all the basics. पहले फंडामेंटल्स तो हर किसी ऑप्शनल में पढ़ने पड़ेंगे. ऑब्वियसली आई एम लीविंग ऑल दोज कंस्ट्रेंट्स जो अभी मैं बात करूंगी कॉन्स वाले पार्ट में. इफ़ यू आर नॉट वरीड अबाउट दोज कंस्ट्रेंट्स ना, you should go for this optional, because you know this subject, you have done this subject, है ना, you know its fundamentals, you know all the subjects, so you just need, I think 70 to 80% सिलेबस आपको फेमिलियर लगेगा कि हाँ आपको आता है. यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. बस वो एक जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना वो चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी बस आपको. यू मे हैव टू स्टडी इन सम सब्जेक्ट्स, यू मे हैव टू स्टडी लिटल बिट मोर, जितना आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा उससे थोड़ा ज़्यादा. कुछ सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा रहेगा कि आपने ग्रेजुएशन में ही ऑलरेडी उसको काफ़ी एक्सटेंड तक पढ़ लिया है. फॉर इंस्टांस मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, और वो टॉपिक यहाँ पर यूपीएससी में उतना डाइवर्सिफाइड नहीं पूछा जाता है, डाइवर्स सब टॉपिक्स उसके अंदर नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है. सो बेसिकली यू आर मच फेमिलियर विद द सिलेबस, यू विल हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ टॉपिक्स, योर बेसिक्स आर वेरी क्लियर, है ना. आई एम कंसिडरिंग बिकॉज इफ यू हैव डन मास्टर्स और यू हैव डन बैचलर्स विद ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, सो योर फंडामेंटल्स आर kind of strong, and if those are not strong then you can revise them, है ना, वो तो ब्रश अप किए जा सकते हैं ना. 70 to 80% सिलेबस का आइडिया आपको रहेगा, प्लस यू विल बी हैबिचुअल ऑफ प्रैक्टिसिंग. प्रैक्टिसिंग इज बेसिकली द की हियर. प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैथ्स ऑप्शनल में यू मे हैव टू प्रैक्टिस द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस 3 to 4 number of times, or at times 5 to 6 times as well. So you may have to revise and keep doing it multiple number of times. So you are, since you are graduated in maths, so you have that habit of practicing multiple number of times. Huh? So I'm considering that. You will be good with calculations since you are already habitual of practicing maths. So you will be, I think you will be good with calculations, with numbers, with the applications of concept, because maths में you have to apply that concept. So you have that aptitude, you have that logic, है ना, तो वो आपके अंदर है, तो आप इस ऑप्शनल को ऑप्ट कर सकते हो. अगेन हियर द ओनली नेगेटिव थिंग इज फ्यू सब्जेक्ट्स विल बी न्यू टू यू. फ्यू सब्जेक्ट्स विल बी न्यू टू यू. फॉर इंस्टांस न्यूमेरिकल एनालिसिस तो नहीं रहेगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स हो गया, देन देयर इज LPP हो सकता है आपने उतना एक्सटेंड तक नहीं पढ़ा हो. सो दीज सब्जेक्ट्स विल बी न्यू टू यू. सो टू द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल हु हैव डन honors in mathematics or who have done masters in mathematics, so उनके लिए they should go for this optional without any doubt, considering जो constraints अभी मैं कौन वाले पार्ट में डिस्कस करूँगी, अगर वो मैनेजेबल हैं तो. now moving forward, नाउ दीज आर द कैंडिडेट्स जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होना भी चाहिए. इट इज़ वेरी नेचुरल बिकॉज दे हैव नॉट स्टडीड मैथ्स ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन. इससे पहले जो 2 टाइप ऑफ कैंडिडेट्स मैंने डिस्कस किए ना, उनको तो ऐसे लगेगा कि मतलब वी नो दीज थिंग्स, है ना, तो दे आर बेसिकली कैपेबल ऑफ डिसाइडिंग जस्ट बाई लुकिंग एट द सिलेबस कि वेदर दे आर कंफर्टेबल विद द सिलेबस और नॉट. बट दीज आर द पीपल who cannot
not, just look at the syllabus and decide ki whether this is the right optional for you or not. So there are certain other parameters for you people to decide. So basically people who are graduated in some art subject, जिन्होंने मैथ्स ग्रेजुएशन में पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने मैथ्स सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास तक पढ़ा है, see, I want you to take a pause and answer all these questions for me. Let me read it out for you. Are you interested in doing maths? And how much you are interested in doing maths? ये आपको पता चलेगा जब आप 11th और 12th क्लास की सर्टेन एक्सरसाइजेस सॉल्व करोगे. Do an exercise for me, it will be very helpful for you. डिफ्रेंसिएशन का जो एक्सरसाइज है ना आपका 11th और 12th क्लास का, आर.डी. शर्मा का, जस्ट गो थ्रू दैट. आप गूगल कर लेना, कहीं पर भी उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. गो थ्रू दैट, डू ए कपल ऑफ क्वेश्चंस, डिफ्रेंसिएशन के, इंटीग्रेशन के, लिमिट के, कॉन्टिन्यूटी के, ये 4 टॉपिक्स के क्वेश्चंस वहाँ से करो एंड देन लेट मी नो और लेट योर सेल्फ नो कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है वो क्वेश्चंस करने में एंड कितना आपको अगर आपको वो नहीं भी पता है, फॉर इंस्टांस यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, क्योंकि अब बिहाइंड दोज क्वेश्चंस बिकॉज अभी काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप ऐसा कर सकते हो, यू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, देन डू द क्वेश्चंस. 10-15 क्वेश्चंस पर टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं ना, उन टॉपिक पर बेस्ड 10 to 15 क्वेश्चंस यू डू. ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी एंड आफ्टर दैट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन कि आपको ये ऑप्शनल ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सी, यू हैव टू वर्क हार्ड. अदरवाइज क्या होगा ना कि 15 days यू विल बी अटेंडिंग सम ऑप्शनल क्लासेस, देन यू विल गेट बोर्ड ऑफ इट, देन यू अटेंड सम अदर ऑप्शनल क्लासेस, यू विल गेट बोर्ड ऑफ दैट. तो उससे क्या रहेगा, यू विल कीप ऑन स्विचिंग योर ऑप्शनल एंड यू कांट अफोर्ड दैट मच टाइम, है ना, यूपीएससी प्रिपरेशन में. ठीक है, यू हैव टू, आई मीन इवन इफ यू वांट टू टेक ए ट्रायल ना, सो टेक इट इन सच ए वे कि आपको उस ऑप्शनल का पता चल जाए कि वेदर यू आर कंफर्टेबल विद दैट ऑप्शनल और नॉट. ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू डिसाइड हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग मैथ्स. अभी तो आपको लग रहा होगा कि आप येस आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग मैथ्स, और इसमें एक चीज़ आप इससे भी असेस कर सकते हो, व्हाट वाज योर स्कोर ड्यूरिंग 12th क्लास. जो 12th के बोर्ड्स हुए थे उसमें आपका मैथ्स का स्कोर कितना था 11th एंड 12th में. वर यू ए गुड स्टूडेंट एट मैथ्स जिन्होंने आर्ट्स ऑप्ट करी सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. अगर ऐसा सीन था तो 11th और 12th में आपका डेफिनेटली 90 अबव स्कोर रहा होगा, 90-95 अबव और 90 अबव स्कोर रहा होगा. तो उसके बेसिस पर भी यू कैन असेस योर सेल्फ. So the third point is your performance in maths exam in 11th or 12th class. How hard working you are. See, this point is important for every type of candidates. You will have to work hard for maths optional. You will have to keep doing things, keep solving things, and you have to keep doing complex problems as well. सो एट टाइम्स इट मे फील लाइक कि नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा, ये मुझे क्लिक नहीं कर रहा है, बट यू हैव टू लाइक कीप डूइंग इट. बट यहाँ पर ना एक पॉजिटिव चीज़ है, जैसे आईआईटी की जब हम प्रिपरेशन करते थे, आईआईटी जेईई में क्या होता है ना कि दे आस्क out of the box questions as well, but in UPSC the pattern remains the same. The pattern, the type of question remains the same, and if some question is very out of the box, then it is out of the box for each and everyone. और उसमें भी because it is a subjective paper और आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि UPSC will go beyond that level कि आपको वो strike ही ना करे. UPSC remains confined to that level only. ठीक है, जो सिलेबस हमें प्रिस्क्राइब किया गया है ना, द एग्ज़ाम पेपर इज़ डिज़ाइंड विद इन दैट प्रिस्क्रिप्शन ओनली, विद इन दैट सिलेबस ओनली. तो अगर आपको कोई टॉपिक पूछा भी, कोई क्वेश्चन ऐसा भी है दैट यू हैव नॉट स्टडीड, तो आपको ये आइडिया होगा दैट दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम दैट सब टॉपिक और फ्रॉम दैट सब्जेक्ट एंड आई हैव डन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आई कैन प्रोसीड इट लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड लाइक लॉजिकली भी आप मैथ्स में यही तो करते हो. यू आइडेंटिफाई द पैटर्न,
यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किस तरह का ये प्रॉब्लम है ना. यू हैव द इनपुट फ्रॉम द अदर क्वेश्चंस जो आप यहाँ पर तैयारी करोगे. यू विल हैव इनपुट्स फ्रॉम योर सॉल्व्ड क्वेश्चंस एंड यू विल यूज दोज इनपुट्स इन योर एग्जामिनेशन. यही तो करते हैं हम. सो यूपीएससी में ऐसा रहेगा कि एक लेवल तक से आगे वो नहीं जाएंगे, है ना. तो बिकॉज योर सिलेबस इज प्रिस्क्राइब्ड एंड पेपर रिमेन्स विद इन दैट सिलेबस ओनली, एंड देयर इज़ अ सेट पैटर्न एंड देयर सेट ट्रेंड एज वेल कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो हार्ड वर्किंग होना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है बिकॉज even if the syllabus is limited, unlike IIT JEE, you will have to practice multiple number of times. You will have to practice same type of questions multiple number of times. You have to be good at calculations. वो मैं बताऊंगी जब हम कौन से वाले पार्ट डिस्कस करेंगे ना, why I am saying these things, वो आपको पता चल जाएगा. So at times ऐसे होता है, देखो लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल. एक बार एक क्वेश्चन आया था, दैट क्वेश्चन वी हैड डन इन क्लास एज वेल, एंड उस क्वेश्चन में देर वॉज लेंथियर कैलकुलेशंस, बहुत लेंथी कैलकुलेशन थे उसमें. इट वॉज लाइक कि इफ़ दैट क्वेश्चन इज़ न्यू टू यू ना, दैट क्वेश्चन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ईट अप 20 minutes ऑफ योर पेपर. तो वो अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट जिसको वो क्वेश्चन नहीं आता था, दैट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर, जिसका क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ता है ना. सो इफ़ समवन वॉज वेरी न्यू टू दैट क्वेश्चन, वो उसको अटेम्प्ट करते हैं, डेफिनेटली वो स्टक होता उस कैलकुलेशन में, वो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होती है उसके लिए. बट इफ़ देयर वॉज ए कैंडिडेट जिन्होंने मेरी जो क्लासेस हैं या फिर खुद के भी नोट्स या फिर रेफरेंस बुक्स को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ा होता, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स सेम क्वेश्चन किया होता, तो आई स्वेयर उसको वो कैलकुलेशन याद रहती. आई एम नॉट सेइंग दैट आपको मेमोराइज करना है. आई एम जस्ट सेइंग यू हैव टू प्रैक्टिस इट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज मैनी ए टाइम्स द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर रिपीटेडली asked from the reference books only. So you will get used to the answers, you will get used to the calculations, so you have to prepare to such an extent. वो मैं बता रही हूँ. That is why you need to be very hard working in it, and you can't afford wasting time if you opt maths as an optional. I'll be dealing with that in the cons वाला part, है ना. Next, you need to ask yourself how much basics are cleared, how much your basics are cleared, how many trigonometry formulae you can recall, trigonometric identities, can you recall differentiation formulae, 1 by a square plus x square का integration क्या होता है, can you recall integration formulae, limit, continuity, functions basically, sin x, cos x, trigonometric functions, exponential, logarithmic functions. See, even if you are not able to recall ना, you will be preparing, then you will be studying some topic. जैसे मैं classes में क्या करती हूँ, I teach the topic from the very basic, है ना. जैसे हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो मैं बिल्कुल बिगनिंग से उसको शुरू करती हूँ. फंक्शंस क्या होते हैं, one functions, onto functions, domain of a function, range of a function. So you will need to brush up those fundamentals, and I think every type of candidates will have to brush up those fundamentals, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी हमारा एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि जैसे यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, टीचर्स हमें वही पढ़ा देती हैं और हम उसी तरह से पढ़ लेते हैं. तो फंडामेंटल्स उतना डीपली या फिर बिटवीन द लाइंस किसी को भी याद नहीं रहते हैं, है ना. आज भी किसी भी जैसे मैथ्स ग्रेजुएट से आप पूछोगे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फॉर्मूला, उसको सॉल्व करने को दोगे तो डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ मिस होगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पढ़ा हुआ नहीं है, मतलब ब्रश अप नहीं किया है वो चीज़ें. तो फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग कितने हैं, और अगर नहीं है तो कैन यू deal with the prerequisites जो भी required हैं, can you study those fundamentals. You have to study 11th and 12th class का maths again. Are you able to do that? तो वो चीज़ एक आप खुद से पूछो, और अगर वो नहीं कर सकते हो तो you will need a mentor जो कि आपको बेस से पढ़ा सके, बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ा सके. Honestly telling you, नहीं तो क्या होगा, आप lost हो जाओगे, है ना. Next, are you okay with doing maths?
सी ये तो मैं तीनों टाइप के कैंडिडेट से पूछना चाहूँगी, आर यू ओके विथ सॉल्विंग मैथ्स? यू एक्की ऑप्शनल्स में क्या रहेगा ना, यू कैन जस्ट रीड दैट आउट, कभी मेट्रो में चल रहे हो या फिर कभी कहीं जा रहे हो तो यू कैन जस्ट रीड आउट एंड यू कैन मेमोराइज, ये रहेगा। बट मैथ्स में यू विल नीड टू सिट डाउन एंड प्रैक्टिस, है ना, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। आर यू ओके विद दैट? हाउ मच टाइम डू यू हैव? सी टाइम वैसे तो तीनों टाइप के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही एक बिग कंस्ट्रेंट है, बिकॉज सिंस द सिलेबस ऑफ मैथ्स ऑप्शनल डज नॉट ओवरलैप विद द जीएस पेपर्स, सो उस केस में तो आप जब ऑप्शनल का पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ ऑप्शनल का पढ़ रहे हो, दैट इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर जीएस पार्ट, है ना। तो इसलिए आपके पास, आर यू कैपेबल ऑफ डिवोटिंग 3 आवर्स डेली टू दिस ऑप्शनल? सो उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो। इफ़ यू आर एबल टू डिवोट 3 आवर्स टू दिस ऑप्शनल ना, डेली अगर 3 आवर्स डिवोट कर सकते हो, देन यू कैन थिंक अबाउट चूजिंग दिस एज एन ऑप्शनल, है ना। क्योंकि कंसिडरिंग ऑल अदर कंस्ट्रेंट्स एज वेल, ये सारे क्वेश्चंस को आपको डीपली एक बार असेस करना है एंड देन यू कैन डिसाइड कि वेदर दिस इज़ द राइट ऑप्शनल फॉर यू और नॉट। आर यू ए वर्किंग प्रोफेशनल? वर्किंग प्रोफेशनल अगर का जो लिंक है वो टाइम से ही है बेसिकली, कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आपका ज़्यादातर टाइम ऑफिस में जा रहा है, आपके पास कम टाइम बच रहा है, तो आपका जो जीएस का प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ये मैं आपको कंस्ट्रेंट बता रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है कि आप मैनेज कर सकते हो, अगेन 2 to 3 आवर्स आप अपने ऑप्शनल के लिए निकाल सकते हो, तो आप कंफर्टेबल हो इस पेपर के साथ, ठीक है। नाउ आपका एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा कि पेपर 1 आपको फेमिलियर लगेगा। यू विल फाइंड पेपर 1 फेमिलियर बिकॉज पेपर 1 इज जस्ट द एक्सटेंडेड सिलेबस ऑफ आवर 12th क्लास। 11th एंड 12th में जो हमने पढ़ा था ना, फॉर इंस्टांस हमने मैट्रिसेस पढ़ा था, तो उसी को आगे आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, तो टॉपिक तो सिमिलर ही है ना। कैलकुलस में वी स्टडीड लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इन केस ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन। यूपीएससी के सिलेबस में वो सेवरल वेरिएबल तक एक्सटेंड किया गया है। सो द सिलेबस ऑफ पेपर 1 इज बेसिकली द एक्सटेंडेड सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th क्लास। सो यू विल फाइंड पेपर 1 फेमिलियर, बट पेपर 2 आपके लिए न्यू रहेगा, कि पेपर 2 आपके लिए कम्प्लीटली न्यू रहेगा एंड यू विल नीड राइट गाइडेंस फॉर पेपर 2, बट डूएबल है। अगर आपको पेपर 1 अच्छे से आता है ना, तो पेपर 2 में तो कुछ टॉपिक्स तो बिल्कुल ऐसे हैं कि एलपीपी, एनए, पीडी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पेपर 2 में कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा पार्ट आपका मैच करेगा 11th 12th वाले से। तो बेसिकली कुछ टॉपिक्स तो बिल्कुल ऐसे हैं जो कि एल्गोरिदम बेस्ड है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सो ये सारे एल्गोरिदम बेस्ड हैं। और मैं तो ये कहूँगी यार, देखो आपको पेपर 1 अच्छे से आता है ना, तो इट मीन्स यू आर बेसिकली गुड विद मैथ्स, यू कैन डू मैथ्स, यू कैन प्रैक्टिस मैथ्स, है ना। आपको वो एप्टीट्यूड है, आपको एप्लीकेशन आता है, मैथ्स को अप्लाई कैसे करना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, वही चीज़ पेपर 2 में काम आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो दीज आर द पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच यू कैन डिसाइड whether to go for this optional or not. In brief, I would like to say कि कितने हार्ड वर्किंग हो आप, मैथ्स के साथ आपका कैसा रिलेशन है, आर यू इंटरेस्टेड इन मैथ्स, और आपको मैथ्स करना अच्छा लगता है, आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है ना, बिकॉज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग ना, देन यू कैन लर्न न्यू थिंग्स एज वेल उस सब्जेक्ट में। बट इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग ना, तो यू विल नॉट लर्न न्यू थिंग्स, यू विल फाइंड डिफ़िकल्टी इन लर्निंग न्यू थिंग्स। तो आप क्या करोगे ना, जो ईजी पीजी चीज़ें वो तो कर लोगे, बट जैसे ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी, यू विल स्टार्ट टू रन अवे, है ना, यू विल स्टार्ट टू एस्केप फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ऐसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ देखा है, तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं कह रही हूँ, डू एन एक्सरसाइज, 11th और 12th क्लास की बुक खोलो, कहीं से गूगल कर लो, या फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, बेसिक क्वेश्चंस। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व IIT JEE लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वो नहीं पूछे जाते हैं। जस्ट सॉल्व द बेसिक प्रॉब्लम्स लाइक फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, कोई डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम ले लो, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम ले लो,
फंक्शन का डोमेन फाइंड करना, लिमिट सॉल्व करने की कोशिश करो, कॉन्टिन्यूटी का के बारे में पढ़ लो, रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, दिस इज इट। इसी से पता चल जाएगा आपको कि कितना आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो। Now let me take you through the pros and cons of choosing maths as an optional. See, अभी तक you have a rough idea कि as you based on your education कि आपको मैथ्स आपको ऑप्शनल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किन पैरामीटर्स पर आप डिसाइड करोगे। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट दिस ऑप्शनल, क्योंकि देयर आर ड्राइविंग फैक्टर्स बेसिकली ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको, जैसे हार्ड वर्क तो आपको हर ऑप्शनल में करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आप कोई नया ऑप्शनल चूज़ करोगे, वहाँ पर कुछ और डिफ़िकल्टीज़ होंगी, तो आपको उस बेसिस पर भी असेस करना है, क्योंकि नई चीज़ें तो सभी में रहेंगी। सिर्फ इस बेसिस पर मत असेस करना कि आपने कितना सिलेबस पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको इस बेसिस पर असेस करना है, क्योंकि नई चीज़ें तो सभी जगह रहेंगी। यू हैव टू असेस इट ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या वो नई चीज़ें आप लर्न कर सकते हो। आर यू रेडी टू लर्न दोज न्यू थिंग्स, आर यू इंटरेस्टेड इन दोज न्यू थिंग्स। हो आप कौन सा ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आप बोर नहीं होगे। You will not get bored of the subject. You should not get bored of your optional, because optional is something जो कि आपको बहुत लंबे टाइम तक पढ़ना पड़ेगा। I think 1.5 years और 2 years आपको optional को देना पड़ेगा ना। So that's how you decide कि optional कौन सा आपका सही रहेगा। Basically it should be a subject of your interest first, and then comes these things कि what are the pros and what are the cons. Now talking about the pros of choosing maths as an optional, first of all it is a predictable optional, मतलब question paper जो रहेगा ना, that will be very predictable, highly predictable. I mean, if you ask my students ना कि what are the type of questions asked in modern algebra, or what are the type of questions asked in LPP, complex analysis, they will be able to tell you that this is the pattern that UPSC follows, this is the trend that UPSC follows, कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ से नहीं आ सकता है। सो आफ्टर डूइंग मल्टीपल ईयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना, 10-15 ईयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप कर लोगे, यू विल डेफिनेटली हैव एन आइडिया कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एंड व्हाट आर द टॉपिक्स दैट नीड टू बी फोकस्ड अपॉन, एंड व्हाट आर द टॉपिक्स जो कि लीस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन से मोर इम्पोर्टेंट है, कौन से लेस इम्पोर्टेंट है ना। सो द पेपर रिमेन्स kind of predictable, but at the same time there might be surprises। जैसे कि इस बार क्या किया था, they tried to lengthen every solution, हर question को lengthy बनाया गया था, but जो introduce की गई थी चीज़, the new thing that was introduced ना, वो link थी उस topic से, है ना। that was not something कि हाँ कहीं से भी पूछ लिया हाँ, तो पेपर विल रिमेन कन्फाइंड विद इन दैट सिलेबस ओनली। नया कुछ ऐसे नहीं होगा कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ पूछ ली, वो चीज़ इसमें नहीं होगी। इवन इफ दे इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, दैट न्यू विल बी रिलेटेड टू दैट द टॉपिक इन दैट क्वेश्चन, जो मेन टॉपिक है उस क्वेश्चन का। स्कोरिंग होता है, देखो यार, ऑब्वियसली इन एवरी अदर इन ऑल अदर ऑप्शनल्स योर प्रेजेंटेशन स्किल्स विल मैटर। फॉर इंस्टांस इफ़ यू टॉक अबाउट एनी ऑप्शनल ना, एनी ह्यूमैनिटी का ऑप्शनल अगर हम बात करें कोई भी, तो वहाँ पर ना आपको यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीपल एस्पेक्ट्स, environmental point of view, economical, political, there will be multiple dimensions to that question. But here in maths, it is not like that. This is a static subject, it is not dynamic, कुछ इसमें current affairs नहीं है। So if there is some question जो कि पूछा जाता है, there is an algorithm for that, you have done that question, solve आपने पहले किया हुआ है, so you have to just attempt that question, and every candidate will be attempting that question in the same way, same ही तरीके से question attempt करेगा हर candidate उसमें। Just a moment, sorry. So that's why there will be no discrimination based on your presentation skills, है ना, तो वो मैटर नहीं करेगा। Obviously there are steps that you need to mention, तो वो तो आपको mention करने पड़ेंगे, you can't skip the main steps, है ना, तो वो तो obviously सभी लोग करेंगे ना जब solving करेंगे। तो score इसमें मतलब एग्जामिनर को मार्क्स देना पड़ेगा, ही कांट डिडक्ट मच ऑफ योर मार्क्स।
नॉर्मलाइजेशन होता है, बट नॉर्मलाइजेशन में ही कैन डिडक्ट 2 to 3 मार्क्स, जो कि हर कैंडिडेट के सेम डिडक्ट होते हैं, है ना। तो स्कोरिंग होता है, इसमें ज़्यादा मार्क्स उसमें आपको आपके डिडक्ट नहीं हो सकते इफ़ योर आंसर इज़ करेक्ट, योर स्टेप्स आर करेक्ट, योर एल्गोरिदम इज़ करेक्ट, है ना। नाउ लेस न्यू थिंग्स, कोई नई चीज़ें एग्जामिनर इंट्रोड्यूस नहीं करता है। देयर विल बी लेस सरप्राइजेज इन द क्वेश्चन पेपर। जैसे नॉर्मली इन ऑल अदर ऑप्शनल्स देयर माइट बी सम सरप्राइजेस, करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके कुछ पूछ लिया, या फिर मल्टीपल एंगल्स से कुछ पूछ लिया, कोई ओपिनियन पूछ लिया आपके किसी एक चीज़ के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी। सो देयर विल बी लेस सरप्राइजेस हियर। एग्जामिनर विल नॉट गो बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल. You will feel confident while doing PYQs. Once a topic is done now, and then you will be practicing PYQs, you will be doing PYQs. If you have studied that topic from a good reference books या फिर from a good mentor जिसको पता है कि किस तरह के questions आते हैं, तो you will feel very confident doing PYQs, क्योंकि आप कर पाओगे. You will be able to do entire PYQs. कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं ना जो कि 100% अटेम्प्टेबल हैं और जिसमें गलतियां भी नहीं हो सकती हैं ना. तो दिस इज़ द थिंग विद मैथ्स ऑप्शनल. लेस फोकस ऑन प्रेजेंटिंग द आंसर. ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, प्रेजेंटेशन क्या प्रेजेंट करोगे. मॉडर्न अलजेब्रा में या फिर जो थियरम्स है ना, उसमें प्रेजेंटेशन मैटर कर सकता है, बट इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता है. नो रोट लर्निंग और मेमोराइजिंग. practical subject. Maths is a practical subject. You have to do things. You don't have to memorize things. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी कि आपने टॉपिक पढ़ा, एल्गोरिथम समझा, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, अप्लाई करना सीखा, and then did 10 to 15 questions, and then you're good to go. You can go to the other topic. So there will be practical things. You will need to do questions, है ना. You will need to do questions in maths. You will not बेसिकली यू विल नॉट बी मेमोराइजिंग स्टफ. मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, रोट लर्निंग नहीं है. ओके, नाउ कमिंग टू द कॉन्स ऑफ चूजिंग मैथ्स एज एन ऑप्शनल. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस दैट यू मे फेस इफ यू चूज दिस एज एन ऑप्शनल, है ना. तो एक तो पहला डिसएडवांटेज मैंने सभी को बता दिया है कि इसमें ना आई मीन यू विल हैव टू गेट दैट फ्लो कि आपको ना क्वेश्चंस करते जाना. यू हैव टू कीप रिवाइजिंग इट, कीप डूइंग इट, कीप रिपीटिंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स. जैसा मैंने बताया कि एट टाइम्स कोई ऐसा टफ प्रॉब्लम होगा जो कि यूपीएससी पूछ लेगा जो पहले से रेफरेंस बुक में था, बट उसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशंस या कुछ ऐसा एक स्टेप था जो कि आपको वहाँ से एज एन इनपुट याद रखना था. तो वो याद कब होगा, जब आप उसको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करोगे. तो पहला कौन तो इसका यही है कि यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस को. सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है. सिलेबस वास्ट है बिकॉज यू हैव 13 सेक्शंस एंड ईच 13 सेक्शंस देयर आर टॉपिक्स. सो इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एट टाइम्स एंड में ऐसे लगेगा कि अब हो गया है, एक्सेप्ट ए फ्यू सब्जेक्ट्स. जैसे वेक्टर एनालिसिस का सिलेबस कम है, एलपीपी का सिलेबस कम है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस कम है, एनए का सिलेबस कम है, एंड देन देयर इज़ यस, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस कम है. बट इनके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें यू मे फाइंड दैट सिलेबस इज़ लेंथियर. आई मीन टॉपिक का जो एक्सटेंट है वो ऐसे हो सकता है कि द टॉपिक हैज़ टू बी स्टडीड फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस. तो उसकी जो डेप्थ है वो आपको ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी टॉपिक की. सो यू मे थिंक कि हाँ सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है. सो नीड्स टाइम प्लस पेशेंस तो ऑब्वियसली चाहिए, है ना, मैथ्स करने के लिए. यू हैव टू कीप डूइंग इट. ऑलरेडी टोल्ड यू, यू रियली नीड टू प्रिपेयर इट वेल और लीव इट. See, this is a very important point. If you are choosing this optional now, it may make or break your selection. See, if you are good at maths, एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कोई और ऑप्शनल चूज़ करते हो और उसको सेम नंबर ऑफ आवर्स आप डिवोट करते हो, 2 to 3 hours, and either you are choosing maths as an optional and you are devoting 2 to 3 hours to maths optional daily. यहाँ पर अगर आप टाइम इंक्रीज करोगे, इफ़ यू इंक्रीज योर टाइम इन मैथ्स ऑप्शनल, यू विल डेफिनेटली स्कोर बेटर.
यहाँ पर जितना आप मेहनत करोगे ना उतना ही आपका स्कोर बेटर होगा, उतना ही आप इम्प्रूव करते जाओगे। यहीं पर जब आप जीएस और ऑप्शनल का भी मैं कंपैरिजन करूँ ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पूछते हैं कि जीएस और मैथ्स में बैलेंस करते हैं तो वो कैसे किया जाए। तो बैलेंस तो आपको डेफिनेटली करना है, बट व्हेन इट कम्स टू कि आपने जीएस अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, देर इज़ एक जीएस में ना एक थ्रेशोल्ड आ जाता है कि इतना ही कोई पर्सन पढ़ सकता है ना, इतना ही कोई पर्सन अटेम्प्ट कर सकता है, बिकॉज देर आर मल्टीपल थिंग्स इन जीएस। एक तो सब कोई सेम रिसोर्सेज फॉलो कर रहा है तो सेम टाइप ऑफ कंटेंट रहेगा, है ना। बट द सेम थिंग अगर आप जीएस में टाइम अपना इंक्रीज भी करते हो ना, यू हैव लाइक मल्टीपल नंबर ऑफ आवर्स जो आप जीएस में डिवोट कर सकते हो, तो आप जीएस के बजाय अगर मैथ्स ऑप्शनल को डिवोट करते हो तो यहाँ आपका स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, यहाँ आपका स्कोर बहुत अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। तो अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हो या फिर इसको ऑप्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, बहुत मेहनत से हार्ड वर्क करोगे, नहीं तो छोड़ दो। क्योंकि अगर आप पढ़ भी नहीं रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, है ना, उस आई मीन राइट रिसोर्सेज भी फॉलो नहीं कर रहे हो और टाइम भी डिवोट कर रहे हो, डेली 2 to 3 आवर्स यू आर जस्ट राइटिंग एंड राइटिंग, कॉपी कर रहे हो, राइट कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा ना, योर टाइम इज़ गॉन एंड दैट टाइम इज़ नॉट लेफ्ट फॉर द जीएस एज वेल। सो आप जीएस का टाइम यहाँ पर दे रहे हो बेसिकली। दिस इज़ what happens in maths optional. You basically takes your GS time and you give that time to maths optional. तो मेक श्योर आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि वो आपके स्कोर को इम्प्रूव करेगा अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। तो अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, माइंडफुल नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन नहीं समझ रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो। कॉन्सेंट्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना जैसा मैंने बताया कि कभी मेट्रो में चल रहे हैं तो हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं बट हम मैथ्स नहीं पढ़ सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि मैथ्स में फोकस की ज़रूरत पड़ती है। यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू टेक पेन एंड पेपर, तब आपको क्वेश्चंस को करना पड़ेगा और उसमें भी स्टेप बाय स्टेप योर माइंड शुड बी इन टू दैट क्वेश्चन ओनली, वो कहीं और नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये या तो बहुत अच्छे से तैयारी करो, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि जीएस में ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो जब जब आप मैथ्स पढ़ रहे होगे, आप सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आप बेसिकली वो 500 नंबर के लिए पढ़ रहे हो, आप पूरे 1000 नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हो। सो दिस इज़ द थिंग विद मैथ्स एज एन ऑप्शनल। तो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उन 500 में से आप 375 380 का टारगेट करके चलो, कि वो आपको टारगेट तो पूरा करना है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बट आपको ये है कि आपका यहाँ तक स्कोर पहुँच जाए नॉर्मलाइजेशन के बाद। और वो कब होगा, जब आप हर टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करोगे, हर रेफरेंस बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो तैयार करोगे, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स सेम क्वेश्चंस को पढ़ोगे, उनका एप्लीकेशन समझोगे और उनको खुद से लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स ड्यूरिंग द एग्जाम। ये तो सभी में होता है, इवन इन जनरल स्टडीज़ और इन एनी अदर ऑप्शनल, इफ़ यू मेक मिस्टेक, तो अगर आपने कुछ गलत लिख दिया तो उसमें अगर आप इरेज करके फिर से लिखते हो तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू एड ए नेगेटिव पॉइंट इन योर क्वेश्चन, इन योर आंसर। यहाँ पर थोड़ा ये हो जाता है कि मान लो आपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया सॉल्व करना एंड यू मेड सम मिस्टेक, देन योर स्पेस इज़ गॉन, है ना, तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है कि अगर कोई सीरियसली तैयारी करता है, तो जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि मेक ए डायरी जिसमें लिखो कि आपसे क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं एंड ट्राई नॉट कमिटिंग दोज मिस्टेक्स। ठीक है, तो जैसे आज कोई मिस्टेक की वो कल भी रिपीट हो रही है, देन द प्रॉब्लम इज़ विद यू, द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द क्वेश्चन, है ना। तो आपको खुद के ऊपर काम करना नहीं आ रहा है, इसका मतलब है। सो जब तक आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तब तक तो आप टेस्ट सीरीज दोगे, तब तक तो आप मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। So you will know your errors, you will know your tendency of committing errors. So आप वो खुद ही नहीं करोगे ना, तो वो I don't think कोई इस तरह से प्रिपेयर करता होगा कि वो इस तरह के एरर्स वहाँ पर कमिट करेगा। माइनर एरर्स हो सकते हैं
बट मेजर नहीं होंगे। मेजर जैसे कि आपने एल्गोरिदम ही गलत कर दिया है ना, नाउ दैट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यू विल नीड ए मेंटोर। देखो यार ये चीज़ जो है ना, दिस इज आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई टीच मैथ्स, बट ये इसलिए है ताकि यू फील गाइडेड, यू डोंट फील डायरेक्शनलेस, बिकॉज देर आर 2 to 3 बुक्स पर सब्जेक्ट है ना, तो आपको यू विल नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दोज रेफरेंस बुक्स, बिकॉज कुछ सारी रेफरेंस बुक्स ऐसे हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो या तो आप वो सारी परचेज कर लो। एंड हमारा एक सेशन आएगा बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटेजी पर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी और बाय द सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुअरी, तो उसको देख देख कर आप फॉलो करो। PYQs का सीरीज़ मैं यहाँ पर यूट्यूब पर कवर करूँगी ही, तो वहाँ से आप PYQs एनालिसिस करते रहना। तो बेसिकली मेंटोर की ज़रूरत इसलिए कि हाफ ऑफ द वर्क इज़ डन, नहीं तो क्या होगा, आपको खुद से ही असेस करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिलेबस, रेफरेंस बुक सब कलेक्ट करना, तो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस केस में। एंड उसमें फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस टॉपिक को किस एक्सटेंट तक पढ़ना है, दैट इज़ वाई यू नीड ए मेंटोर। प्लस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, एंड इफ़ द कॉन्सेप्ट इज ट्विस्टेड देन उसको कैसे डील करना है ना। तो फ्रॉम UPSC एंगल यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक ना, तो आपको वो UPSC एंगल या तो खुद से पता हो या फिर यू आर अंडर द गाइडेंस ऑफ समवन जिसको UPSC का एंगल पता है। दैट्स बेसिकली वाई यू नीड ए मेंटोर फॉर मैथ्स ऑप्शनल प्रिपरेशन, ठीक है। तो मैं इसको कॉन्स नहीं मानती वैसे, बट मैंने लिख दिया, मैनी ऑफ यू थिंक दैट वे, ओके। सो दीज आर बेसिकली ऑल द थिंग्स जो मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी थी। सो दिस इज़ इट। एक्चुअली आई एम नॉट यूज टू टेकिंग सेशंस लाइक दिस, ऐसे बोर्ड पर है ना, तो I may sound like कि my voice is breaking and I'm tired, but I'm not actually. It is just that I'm not habitual to it, है ना, तो वो धीरे धीरे वो इसकी आदत लग जाएगी मुझे। Okay then, bye everyone, take care and please leave a feedback so that I can come up with more such sessions। हम एक बुक लिस्ट प्लस स्ट्रेटेजी का सेशन कंडक्ट करेंगे, प्लस स्ट्रेटेजी आई गेस बाई 10th of February।